Good morning, students. Today I am going to explain you about the verb and its kind. It is lesson 8 of language. Verbs tells us what the subject in a sentence is, has or does. For example, India is a country. Rinki has a motorcycle. Bholu borrowed 50 rupees from Novita. All these are the examples of verb. Clear? Now come to the kinds of verbs. There are many kinds of verbs. First is action and to be verbs. Second is auxiliary and main verbs. Third is to have and linking verbs. Transitive and intransitive verbs. Visible and invisible verbs. And regular and irregular verbs. Okay? Now come to the action and to be verbs. Action verb tells us what the subject does in the sentence, whereas to be verb shows the state or being of the subject in a sentence. Means जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो ये बताते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या कर रहा है, और जो टू बी वर्ब्स होते हैं वो उनकी स्टेट और बीइंग बताते हैं कि वो किस पोजीशन में है, क्या है. फॉर एग्जांपल, प्रियल इन्फ्लेटेड हर बैलून बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट. यानी प्रियल क्या कर रहा है, वो बैलून में एयर को इन्फ्लेट कर रहा है, भर रहा है. फेडरर प्लेज बेटर देन नेडल. These are the examples of action verb. Now come to the examples of to be verb. Now I am senior to Shashikant by 4 years. ये being बता रहा है कि मैं सीनियर हूँ. सुव्रत will be 11 next week. सुव्रत होगा 11 का next week. Now come to the second kind of verb, and that is auxiliary and main verbs. Main verb is the verb that shows the main action and can exist alone also. जो मेन वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में वो मेन एक्शन करते हैं और वो सेंटेंस में अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं. बट ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, तो वो सेंटेंस में वर्ब की हेल्प करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं was, can, will, have, am, etc. क्लियर? देखिए फर्स्ट एग्जांपल है लता वॉज सिंगिंग वेरी कंफर्टेबली एंड स्वीटली. तो वॉज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और सिंगिंग क्या है, वो मेन एक्शन है. तो वो मेन वर्ब सिंगिंग है, ऑक्सिलरी वर्ब वॉज है. नाउ कम टू द थर्ड काइंड, एंड third kind is to have and linking verbs. To have verbs show what the subject of the sentence owns. To have means जो sentence का subject है उसके पास क्या है. जैसे अनुष्का हैज़ लॉन्ग एंड शाइनी हेयर. अनुष्का के पास क्या है, लंबे और चमकदार बाल. Now come to the linking verbs. Linking verbs क्या होते हैं, links the subject to its complement. Linking as the word show, ये link करता है subject को उसके complement से, known as subject complement. Example देखिए, जयदेव is a doctor. जयदेव क्या है, डॉक्टर है. तो इस क्या है, वो linking verb है. Clear? Now come to the transitive and intransitive verb. Transitive verbs are those verbs which take objects to complete the meaning of the sentence. Transitive verbs वो verbs होते हैं जो अपनी meaning को complete करने के लिए objects की help लेते हैं, तब उनकी मीनिंग क्लियर होती है. जैसे दे कॉन्ग्रेचुलेटेड अस ऑन अवर विक्ट्री. किस पे कॉन्ग्रेचुलेट किया, विक्ट्री पर, विजय पर. ठीक है. नाउ कम टू द इनट्रांजिटिव वर्ब. इनट्रांजिटिव वर्ब्स डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस. इनट्रांजिटिव वर्ब्स को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपनी सेंटेंस में अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. क्लियर? जैसे द प्यून स्लिप्ड, तो प्यून स्लिप्ड इज ऑल्सो ए कंप्लीट सेंटेंस ऑन द फ्लोर. क्लियर? Now come to the visible and invisible verbs. Visible verbs are those verbs which we can see, or invisible verbs are those verbs which cannot see. Visible verb shows the action that takes place in the physical form and therefore can be seen. Example, the old man chopped the log alone. Old man ने अकेले ही लकड़ी के लट्ठे को काट डाला. Now come to the invisible verb. The examples of invisible verbs are we thought a lot before going there. जो थॉट वर्ड है वो वर्ब है और लेकिन इनविजिबल है, वो माइंड के अंदर चल रहा है, उसे कोई देख नहीं सकता है. क्लियर? नाउ कम टू द सिक्स्थ काइंड ऑफ वर्ब, एंड दैट इज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स फॉर्म्स इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स विद ed एट द एंड. उनके एंड में
रेगुलर वर्ब्स की ये विशेषता होती है कि उनके एंड में ईडी ऐड किया जाता है, तो वो अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को क्लियर करते हैं। और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स इरेगुलरली विदाउट एनी रेगुलर पैटर्न। उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, रन, रैन, रन, ये वर्ब है, ये उसका पास्ट है, ये उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बट इन्होंने कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं किया। इसी तरह देखिए इरेगुलर वर्ब में गो, वेंट, गॉन, इन्होंने किसी भी पैटर्न को, कभी कभी वर्ब का तीनों फॉर्म सेम होता है, तो ये हो गया इरेगुलर। इस टाइप के वर्ब्स को इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। क्लियर? नाउ इन माय नेक्स्ट today I have explained the verbs and its kinds. In my next video I will explain the exercises of this chapter, lesson 8. Clear? Thank you for today, students.